کی شکر گزاری کرتے، اسے مبارک کہتے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور اس کے منصوبے اس کے لوگوں کے لیے بھلائی کے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور آج کا جو دن خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، آپ بلیو کریں یہ 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے اور آج کا یہ دن ہم اس کی پاک بارگاہوں میں اس کے نام کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہ زندگی دینے والا خدا ہے۔ اور آج صبح جس موقع پر ہم اس جگہ پر جمع ہیں، آج کا وہ دن کرسمس ڈے ہے، بڑا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اور کرسمس جو ہے یہ بالخصوص نجات کا پیغام ہماری زندگیوں میں ہمیں دیتا ہے، اور کرسمس جو ہے یہ صلح کا پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے، کہ خدا بنی نوع انسان سے راضی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام حق کی طرف بڑھیں، آج کا یہ دن جو کرسمس جسے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہم چند باتیں دیکھیں گے، اور اسے عید تجسم المسیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسیح جو ہے اس نے جسم میں اس دنیا میں وہ آیا اور وہ بنی نوع انسان کے لیے نجات کا پیغام لایا۔ ہاللیلویہ۔ کرسمس جو ہے یہ اصل میں 2 الفاظ کا مرکب ہے، اور پہلا لفظ جو ہے وہ کرائسٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے مسیح یا مسیحا۔ اور اس کے معنی ہے نجات دہندہ۔ کرائسٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے نجات دہندہ، وہ مسیح ہے، اس کے معنی ہے جسے خدا نے مسیح کیا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ نام ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مسیح ہے، وہ ممسوح ہے، وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور کرائسٹ کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کرسٹوس کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے مسیحا یا مسیح۔ اور پھر اس کا بیان ہمیں یسایہ نبی کے صحیفہ میں ملتا ہے، اور اس کا آپ 61 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو مسیح ہے، وہ جو مسیح کیا ہوا ہے، اسے خدا نے بھیجا ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے نجات کا پیغام دنیا میں وہ لے کر آیا، اور یہ خدا کی طرف سے تھا، خدا نے اسے مسیح کیا۔ اور پھر جو دوسرا لفظ ہے کرسمس، یعنی یہ باس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ورشپ سروس یا ڈیوائن ورشپ۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مازا، اور اس کا مطلب ہے عبادت، بندگی، پرستش، سجدہ، سلام، تعظیم یا حمد و ثنا۔ یہ کرسمس جو ہے یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، میں نے بیان کیا، کرائسٹ اور ماس۔ اور اس کا مطلب جو نکلے گا اس دونوں لفظوں کو وہ یہ رہے گا
اس سے مراد ہے کہ عبادت کے ذریعہ سے مسیح یسوع کے جنم کی خوشی منانا۔ ہاللیلویا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر یسوع مسیح کی جو سالگرہ ہے، اس کی جو پیدائش کا دن ہے، اس کو منانے کے لیے جمع ہے، اور پوری دنیا میں ہر طرف لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تحائف آپس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، دعوتیں مل رہی ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت، یہ خوشی، یہ ڈیوائن سروس جو ہے، یہ ڈیوائن ورشپ جو ہے، نہ صرف زمین پر ہے بلکہ یہ ورشپ آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر لاکھوں فرشتے یسوع مسیح کی، خدا باپ کی کیا کرتے؟ وہ پرستش کرتے، وہ اسے جلال دیتے۔ اور یہ حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ملتا ہے کہ وہ جو چاروں جاندار ہیں وہ بغیر آرام کیے، کیا کیے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھکتے نہیں، وہ رکتے نہیں، بلکہ بغیر آرام کیے وہ کیا کہتے رہتے ہیں؟ قدوس قدوس خدا قادر مطلق۔ ہیلیلویا۔ وہ بغیر رکے کیا کرتے ہیں؟ ڈیوائن ورشپ کرتے ہیں، الہی پرستش جو ہے۔ کرسمس کا مطلب ہے عبادت کے ذریعہ سے مسیح یسوع کے جنم کی کیا کرنا؟ خوشی سیلیبریٹ کرنا۔ آئیں میرے ساتھ کلام حق کو دیکھیں۔ لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات آج ہم تلاوت کریں گے۔ لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے کلام پر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی چل اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑانے لگے، بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ حوالہ ہمیں نجات کی اس شادمانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یسوع مسیح کے طفیل ہمیں ملتی ہے۔ نہ یہ اچھے کھانوں سے ملتی ہے، نہ اچھے کپڑوں سے، نہ روپے پیسے سے، نہ دنیا کی خوشی سے، بلکہ یہ یسوع مسیح کے طفیل ہمیں ملتی ہے۔ اور آج صبح جس حوالہ کو ہم دیکھنے کو ہے کہ زکئی نام ایک شخص ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ محصول
یعنی وہ ٹیکس کلیکٹر ہے بلکہ ان کا سردار ہے، وہ ان کا ہیڈ ہے اور ایک دولت مند شخص ہے، اور محصول لینے والوں کے تعلق سے ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ یہ دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، یہ دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ تھے، دنیا کے لوگ جو تھے، جو معاشرے میں ان کا مقام تھا وہ بہت بدتر تھا، کوئی انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ٹیکس وصول کرتے، بعض دفعہ یہ اس اماؤنٹ سے زیادہ وصول کرتے، اس لیے لوگ انہیں کیا سمجھتے؟ وہ انہیں برا سمجھتے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جو گواہی ہے وہ بھی عدالتوں میں قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی یہ کسی کی گواہی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیسے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے پیسے لے کر سچ کو جھوٹ میں بدل دیا ہو۔ لیکن آج اس شخص کی زندگی میں، اس کی زندگی کی ہسٹری جو ہے وہ بدلنے والی ہے، کیونکہ اس نے سنا ہے، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں جانا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے یسوع مسیح کو دیکھ لے۔ آج جو ہمارا کرسمس ہے، اس پر پہلا جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں۔ ہاللیلویا! اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ یسوع مسیح کو دیکھے، وہ یسوع مسیح سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ بھیڑ کے سبب سے، یعنی دنیا والوں کے سبب سے، شاید وہ دنیا کے لوگ اسے آگے نہیں جانے دے رہے، وہ اسے کہتے ہوں گے تو گنہگار ہے، تو یہیں پر رہ، تیرا یسوع سے کوئی کام نہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ مشتاق ہے یسوع مسیح کو دیکھنے کا، اور اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا قد کیا ہے؟ چھوٹا ہے، اور بھیڑ میں لوگ اگر کھڑے ہوں تو شاید وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے لکھا ہے کہ اسے ایک ترکیب کہہ لیں کہ سوجی ہے، اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے ایک گلر کے درخت پر وہ چڑھ گیا۔ یہ اس کی ایفرٹ ہے، یہ اس کی کوشش ہے مسیح یسوع کے لیے۔ کیا آج ہم ایسی کوشش کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے؟ کیوں جی؟ مختلف طرح کے ہم کام کر سکتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، اس کی جو دید ہے یا اس کا جو دیدار ہے اس کے لیے ہم مختلف طرح کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اس کا مطلب تھا کہ وہ دنیا سے کیا ہو گیا؟ تھوڑا اوپر ہو گیا، اس نے اپنے لیول کو کیا کیا ہے؟ اوپر کر لیا ہے۔ اسی طرح مسیح کے جو لوگ ہیں، جب وہ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا اونچا جانا پڑے گا۔ ہاللیلویا! اپنے لیول کو انہیں اپ کرنا پڑے گا، ڈاؤن نہیں کرنا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپ کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں مسیح کو دیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ ٹائم سب ہوگا، تو ٹائم ہمارے پاس ہے کوئی؟ کیوں جی؟ دنیا کے کاموں کے لیے تمہارے پاس ہے ٹائم؟ پورا دن ہم کام میں بیزی، ڈبل ڈیوٹی، سارا کچھ آپ سب جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں پر اس کی ہمیں وہ کوشش جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور پھر وہ اسی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج یسوع مسیح یہاں سے گزریں گے، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ جب وہ اس پیڑ پر چڑھ گیا تو یسوع مسیح اس جگہ پر پہنچے۔ ہاللیلویا! اور پھر یسوع مسیح کیونکہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، وہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہ جو دل کے خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے، وہ ہمارے نام سے واقف ہے۔ ہاللیلویا! اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اس کا نام لیا۔ ابھی اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی نہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس کے نام سے اسے پکارا۔
हालेलुया। वो हमें नाम से जानता है, शायद हम उसे ना जानते हों, लेकिन वो हमारा नाम जानता है। हालेलुया। और लिखा कि उसने पुकारा कि ऐ ज़कई जल्द उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यानी ये क्रिसमस का पैगाम है कि यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता है। और वो घर कौन सा है? हालेलुया। ये इस घर की बात है, ये ईंटों का जो घर है इसकी बात नहीं हो रही। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और ये उसके लिए क्रिसमस डे था। हालेलुया। अगर आप इसकी गहराई को समझ जाए तो हर दिन हमारा क्रिसमस डे होगा। अगर हम हर रोज उसे कबूल करें, उसे अपनी जिंदगी में दावत दें, उसे अपने घर में दावत दें, तो हर रोज हमारा क्रिसमस होगा। हालेलुया। और उसके बारे में लिखा है वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। हालेलुया। यानी उसने उस बात को रद्द नहीं किया, उसने आर्गुमेंट पेश नहीं किए। खुदा मैं तो सिर्फ आज तुझे देखने आया था, मेरे घर में कोई तैयारी नहीं की, मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने घर की सफाई नहीं की, या मुख्तलिफ काम आज मैंने नहीं किए। ऐ खुदा फिर किसी दिन कर ली, फिर किसी दिन मैं तुझे दावत दूंगा तो तू मेरे घर आना। वहां पर लिखा है कि उसने क्या किया, जल्दी से वो फौरन उतरा और खुशी से। पर सानू खुशी नहीं होती है। ज़बूर भी कहता मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ ही हवा दे। इत्थे कहंदे ने ठहर जा जरा मैं पहले अपने काम ते मुका लवां। लेकिन ज़कई के बारे में लिखा है कि उसने क्या किया, जल्दी की, क्योंकि वो जानता है कि ये नजात दहिंदा आज मेरी जिंदगी को बदल डालेगा। आज ये मेरे मकाम को, मेरे नाम को ये क्या करेगा, बदल डालेगा। क्योंकि दुनिया में उसका कोई मकाम ना था। शायद वो दौलत तो बहुत थी उसके पास, लिखा है कि वो दौलतमंद है, लेकिन उसकी गवाही कबूल नहीं होती, लोग उसे अच्छा नहीं समझते। दौलत तो है उसके पास, रुपया पैसा तो है। आज लोग कहते हैं जिन्हें को रुपया पैसा होते सारे दोस्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो दौलतमंद था, लेकिन लोग उससे कोई मेल जोल नहीं रखते। वो दुनिया से कट ऑफ लोग थे, वो दुनिया से अलग अपनी जिंदगी बसर करते थे। उन्हें अच्छी महफिलों में नहीं बुलाया जाता था। वो दुनिया का पिसा हुआ तबका था, रद्द किया हुआ ऐसा तबका जो गुनहगारों की लिस्ट में आता है। क्योंकि लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके साथ चला गया तो लिखा है कि जब लोगों ने यानी दुनिया ने जब देखा तो वो क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, आवाज़ा कसन ला पे ले यीशु वे किते जा रहे, यीशु को पता ही नहीं मेरा क्या हाल है। हाँ, उन्होंने कहा यीशु मसीह शायद इन्हें जानता नहीं, इसलिए ये घर चला गया, बहुत गुनहगार है, ये बहुत ही बुरा है। समझ आ रही है बात की आपको मेरी? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि लोग क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। आज भी लोग बुड़बुड़ाते हैं। जब हम मसीह के पास आते, जब हम मसीह को कबूल करते, जब हम मसीह को अपनी जिंदगी देते, तब भी लोग बुड़बुड़ाते हैं। ले बड़ा दुआवां करने वाला मैं जानना तेनू है किन्ने को तो पानी जी मुझे सारे पता है। लोग आपको अपनी बातों का निशाना बनाएंगे, वो बातें करेंगे, वो आप पर तंज करेंगे, वो आप पर नारेबाजी करेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो आप उन बातों की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस नजात को पा चुके हैं। हालेलुया। और ये नजात जो है ये सबके लिए है। ये नजात दहिंदा जो है ये सबके लिए है। फरिश्ते ने जो यूसुफ को पहले पैगाम दिया कि तू उसका नाम क्या करना, यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी जो उसे कबूल कर लेता है वो उसका अपना बन जाता है। हालेलुया। और फिर नजात जो है वो उसकी हो जाती है। और यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने कहा ये एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा रहा है, ये तो एक बदकार शख्स है, ये तो गुनहगार है, ये तो गुनाह करता है हर रोज। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि यीशु मसीह उसे
क्रिसमस का पैगाम देते हैं। आज कुछ फर्क पैगाम है। चरवाहों का पैगाम हमने सुना है, फरिश्तों का भी हमने सुना है, मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ, ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं। लेकिन जो क्रिसमस असल है वो यही है कि यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है वो दुनिया में इसलिए आया ताकि बनी नौं इंसान क्या करे, निजात पाए। और जो निजात का मतलब है वो यही है, बचाओ या बचाना। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि हमें क्या करें, बचा लें। वो हमारे बचाव के लिए इस जमीन पर आया। और लिखा है कि इससे पहले कि यीशु मसीह उसके बारे में वो बात कहते, उसने कहा कि मैं अपना आधा माल, यानी जो मेरे पास है उसे मैं क्या करता हूं, गरीबों में तकसीम करता हूं। और ये इस बात की अलामत थी कि अब रुपया पैसा दुनिया मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मैंने जिंदगी के मालिक को अपने घर में उतार लिया है। हालेलुया। यानी उसने दुनिया की ऐशो इशरत को कंडेम किया, उसने उसे रद्द किया, उसने दुनिया की दौलत को इग्नोर कर दिया और उस नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में क्या किया, कबूल कर लिया। और फिर वो कन्फेस करता है, इकरार करता है कि अगर मैंने किसी से कुछ नाहक, यानी जिसने मेरा हक नहीं था लेकिन मैंने उससे वसूल कर लिया, अब मैं उसे क्या करता हूं, 4 गुना वापस करता हूं। यानी जिससे मैंने कुछ भी नहीं लिया अब उसे मैं अपने पास से देता हूं, क्योंकि खजानों का मालिक, हालेलुया, यीशु के खजाने भरे हुए हैं। उसने उस खजाने को अपने घर में उतार लिया। अब दुनिया के खजाने की, दुनिया के रुपए पैसे की अब उसे लालच नहीं। ये बात इस बात की तरफ इशारा दिलाती है कि उसके अंदर से लालच जाता रहा। तो जो कीजिए क्या हुआ, ये रुपया पैसा लोगों में बांटना इस बात की निशानी थी कि अब उसकी जिंदगी में दुनिया की हवस जो है, जो दुनिया का लालच है, जो मालो दौलत का लालच है, अब वो उससे क्या हो गया है, आजाद हो चुका है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी पर निगाह की है कि ये तो रद्द किया हुआ है। इसके बारे में तो लोगों की राय अच्छी नहीं है, लोग तो उसे गुनहगार कहते हैं। और यीशु मसीह ने उसकी हालत पर निगाह की। और हम जानते हैं कि हम जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे थे, अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, नाउमीद थे, बेदिल थे, मजहबी रसूमात के गुलाम थे, जैसे आज भी लोग गुलाम हैं। तो हम परस्ती, मजहब परस्ती, रवायात जो हम देखते हैं उनकी हम पूजा करते कि फलाने ने क्या सी, फलाने ने क्या सी। हम इन्हीं बातों पर क्या करते हैं, अपना फोकस किए हुए हैं। और इन्हीं सारी बातों में हमने क्रिसमस का जो असल पैगाम है उसको गड़बड़ कर दिया। हमें पता ही नहीं है क्रिसमस का पैगाम है क्या। लेकिन आज मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का पैगाम जो है ये असल में नजात का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम जो है ये क्या है, मिलके कहें, ये क्या है, नजात का पैगाम है। और नजात के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज जो है वो सोतीरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसका मानी है माफी, रिहाई, आजादी। और यीशु मसीह जो है वो हमें क्या करने आया, आजादी दिलाने आया। वो हमें नजात के लिबास से मुलब्बिस करने आया। अगर हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तब हमारा क्रिसमस है। ये बात आज जान लीजिएगा। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में है, अगर वो हमारे घर में है, ये जो बदन का घर है, ये जो बदन का खैमा है, इसकी बात मैं करूं, अगर यीशु मसीह इसमें है तब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हम नजात दहिंदा को कबूल कर चुके हैं तो फिर हम क्रिसमस की असल स्पिरिट से वाकिफ हैं, फिर हम क्रिसमस मना सकते हैं, फिर हमें क्रिसमस मनाने का फायदा भी होगा।
हालेलुया। और फिर लिखा कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, यानी आज इस घर में क्रिसमस मनाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे क्रिसमस का असल मकसद जो है वो बता दिया कि आज इस घर में नजात आई है। अगर आज तक अभी तक आपने यीशु मसीह को नजात दहिंदा को कबूल नहीं किया तो फिर क्रिसमस का फायदा क्या? सो अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिसमस मनाएं तो उसका असल जो मकसद है वो ये है कि नजात दहिंदा को कबूल करना। और इसके लिए अगर हम देखें कि जब कोई शख्स नजात पा लेता है, यानी वो तौबा कर लेता है, तो फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या उसके बारे में कोई कलाम मुकद्दस में बात लिखी है? आए देखिए इसको, लूका तबीब का इंजीली बयान है, उसका 15वां बाब और उसकी 10 आयत जो है उसको हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका तबीब का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। मैंने पढ़ा कलाम मुकद्दस में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आज का पैगाम जो हम सुन रहे हैं ज़कई का, ये ऐसा ही एक गुनहगार शख्स है। पता नहीं कितने साल में क्रिसमस मनाता होगा, क्यों जी, सेलिब्रेशन करता होगा, अपने घर में दावतें लोगों को देता होगा, लेकिन उसकी जिंदगी में नजात की जो असल शादमानी थी वो मौजूद नहीं थी। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि जब उसने तौबा की है तो खुदा के सामने क्या हुआ है, फरिश्तों ने, ना सिर्फ इंसानों ने जमीन पर, बल्कि क्या हुआ है, फरिश्तों ने क्या की है, खुशी मनाई है। वहां पर भी एक बड़े जश्न का एहतमाम किया जाता है। जब कोई शख्स जमीन पर तौबा करता है, जब कोई शख्स जमीन पर यीशु मसीह को कबूल करता, वो बपतिस्मा लेता, वो निजात पाता, तो आसमान पर क्या होता है, एक बड़ी खुशी मनाई जाती है, यानी क्रिसमस डे मनाया जाता है। हालेलुया। हम क्रिसमस क्या समझते हैं? नए कपड़े, नए जूते, रंग बिरंगे खाने, पार्कों के हाँ जी साउंड सिस्टम पे वो सुनना, सारी जो नवाज़मात सब जानते हैं। फिर क्या होना, पार्कों में घूमना फिरना, दोस्तों के साथ, ये सारी चीजें हमने क्रिसमस को ये शक्ल दे दी है। ट्रीज डाल लिया, सेंटा क्लॉज बना लिया, क्यों जी, ऐसे मना रहे हैं ना हम सब क्रिसमस, या कोई फर्क है? बात ऐसे मना रहे हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही मनाया जा रहा है। लेकिन कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि असल जो क्रिसमस है, जब जमीन पर तौबा की जाती है, यानी कोई निजात कबूल करता है, तब क्या होता है, क्रिसमस डे है। और ये मैंने बताया कि हर रोज क्रिसमस डे मनाया जा सकता है अगर हर रोज हम उसे अपनी जिंदगी बता दें, अगर हम में से हर कोई जो है वो उसे कबूल कर ले, अगर वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफी हासिल कर ले, तो उसके लिए क्या है, क्रिसमस डे है। हालेलुया। उसके लिए निजात की शादमानी है। हमने क्रिसमस पे आज अपने आप को चेक करना है। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ जो सेलिब्रेशंस जो हैं इनका नाम नहीं है, या एंजॉयमेंट जो है इसका नाम नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर जो खास बात है आज के दिन में वो क्या है, आखिरी चल पाते हैं। हमने क्या करना है, अपने आप को चेक करना है, जैसे ज़कई ने चेक किया। हाँ? उसने चेक किया कि जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया है तो अब दुनिया मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया तो उसने क्या कहा, अब दुनिया की कोई चीज मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। उसने जो दौलत थी उसने सारा कुछ क्या किया, लुटा दी। उन्होंने क्या लुटा, इसकी अब कोई अहमियत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो खजानों का मालिक है,
हालेलुया, जो बरकतों का मालिक है, जो जिंदगी का मालिक है, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। हालेलुया। और क्रिसमस जो है असल में जैसे मैंने बताया कि ये निजात का पैगाम है। साल्वेशन अगर हमारी जिंदगी में है तो फिर हम क्रिसमस मना सकते हैं। और सबसे जो खास बात है वो यही है कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हो, फिर हम क्रिसमस मनाएं। और इससे क्या होगा, फिर दूसरों को भी नजर आएगा कि ये क्रिसमस मना रहे हैं, यानी इनकी जिंदगी में निजात की असल शादमानी मौजूद है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। हाँ जी, नूर हो। यानी क्रिसमस जो है ये असल में रोशनियों का पैगाम है। ये भी रोशनी यहाँ पे जल रही है। मुख्तलिफ दुनिया में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, उनका कुछ फायदा नहीं अगर हमारी जिंदगी में रोशनी ना हो। अगर हमारी जिंदगी में इब्लीस ने अंधेरा किया हुआ है दुनिया के कामों के सबब से, दुनिया की फिक्रों के सबब से, दुनिया के रुपए पैसे के सबब से, दुनिया की ऐशो के सबब से, तो फिर हमारा क्रिसमस नहीं है। फिर ये जस्ट जैसे हम पार्टियों में जाते हैं, शादी ब्याह के जो फंक्शंस होते हैं, वैसे ही सेलिब्रेशन है। कितनों को समझ आई है मेरी बात? क्रिसमस क्या है, मेरे साथ कहिएगा, ये निजात का पैगाम है। क्रिसमस क्या है? निजात का पैगाम है। क्रिसमस क्या है? सुलह का पैगाम है। क्योंकि लिखा है कि फरिश्तों ने क्या किया, सुलह का पैगाम दिया। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्ते आसमानों से आए, ना सिर्फ जमीन पर मजूसियों ने, गडरियों ने, बल्कि लिखा है कि फरिश्ते भी आए। हालेलुया। उन्होंने भी कंफर्म किया कि वाकई ही निजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा हो चुका है। और अब वो, जैसे हम सब जानते हैं, वो चन्नी में नहीं आएगा, अब वो कहां पर आएगा? हालेलुया। अब वो बादलों पे आएगा, अब वो चन्नी में नहीं आएगा। अब यीशु मसीह छोटा बच्चा नहीं है, अब यीशु मसीह 2020 साल का होगा। हालेलुया। सो उसे हमने क्या करना है? कबूल करना है। ये हमारा असल क्रिसमस है। आप यकीन करें, खुदा का कलाम यही बयान कर है। ज़कई की जिंदगी में वो क्रिसमस था, क्योंकि आखिरी आयत ये बताती है यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यानी जो दुनिया में खो चुके हैं, जो दुनिया के कामों में खो चुके हैं, उन्हें क्रिसमस मुबारक कहने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह असल में वो क्रिसमस है। अगर हम उसे कबूल करते हैं तो वो हमारी निजात का पैगाम है। आए अपनी आंखों को बंद करते, अपने सरों को झुकाते और उस निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में दावत देते। अगर आज तक इतने क्रिसमस हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किए हैं तो आज मौका होगा, आज हमारे पास ये मौका होगा कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करें, उसे अपनी जिंदगी में दावत दें, क्योंकि वही निजात का पैगाम है। एक ही नाम है जो आसमानों पर और जमीन पर बख्शा गया है, और वो नाम यीशु नाम है, जिसके वसीला से निजात है, जिसके वसीला से रिहाई है, जिसके वसीला से मखलसी है। वो नाम सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। आए हर एक आंख बंद हो, हर एक सर उसकी ताज़ीम में